आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं दक्षिण भारत। पहले हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश में मखलूत हुकूमत ने लेबर कोड्स का किया खैर मकदम। अपोजिशन ने मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक चलाने का किया ऐलान। पुट्टापर्थी साईं बाबा शताब्दी तकारीब, सदर मुर्मू और वजीर आला नायडू की शिरकत। खिदमत इंसानियत में सत्य साईं बाबा के किरदार को सराहा। तमिलनाडु के वजीर आला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखा खत। मेट्रो रेल मंसूबे को मुस्तरद करने के बाद नजरसानी की एमके स्टालिन ने की दरख्वास्त। बेंगलुरु से एटीएम वैन की चोरी का केस हल। वारदात के 2 दिन बाद 5 करोड़ 70 लाख रुपए बाजियाब कर लिए गए। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। विशाखापट्टनम के साहिल पर पैरामोटरिंग का लोग ले रहे हैं लुत्फ। रियासती हुकूमत की काविशों से एडवेंचर स्पोर्ट्स का स्पॉट बनता जा रहा है ऋषिकुंडा बीच। और खबर तफसील से, मरकजी हुकूमत ने 4 लेबर कोड्स को 21 नवंबर 2025 से नाफिज करने का ऐलान कर दिया। साल 2019 और 20 में 4 लेबर कोड्स पार्लियामेंट से मंजूर किए गए थे। बताया गया कि बरतानवी दौर के कई पेचीदा कवानीन की जगह एक मरबूत और जदीद लेबर फ्रेमवर्क लाया गया। हुकूमत के मुताबिक ये इस्लाहात सरमायाकारी को फरोग देने, रोजगार के मौके बढ़ाने और इदारों के लिए भर्ती खिदमात के नज़्म को आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का खैर मकदम किया। इसे मुल्क को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के समत एक फैसला कुन कदम करार दिया। नायडू के मुताबिक मुल्क को आलमी मयार की मईशत बनाने के लिए फैसला जरूरी है। बीजेपी लीडर लिंका दिनाकर ने विजयवाड़ा में कहा कि नए लेबर कोड तमाम वर्करों को बर वक्त समाजी तहफ़्फ़ुज़, इंश्योरेंस की सहूलियात यकीनी बनाएंगे। Outdated 29 labor enactments which were redundant have been removed and replaced with 4 labor codes under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji for the safety, security, welfare and social security of laborers are concerned are the utmost priority in these codes. Apart from these, ease of doing business for industries with less compliances, outdated compliances were removed. Most particularly, Wage Code 2019, Industrial Relation Code 2020, the Code on Social Security 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020 have been introduced for the welfare of the laborers in all sections in our country. Though there was no mandatory appointment letters in previous enactments, as far as laborer codes are concerned, giving mandatory for appointment even small and medium enterprises, every appointment shall be made through proper communication by means of appointment letter. And then social security coverage also, previously it was limited social security coverage was held. Now this particular minimum wage has been extended as a statutory right for all the wage payments pertaining to the all laborers. Minimum wage and time-bounded payment also part and parcel in this new code. Preventive health care, previously it was not mandatory. Now above 40 years laborers, free annual medical checkups have been introduced. Like these timely wages and women workforce safety security measures mandatorily taken into force, and compliance requirement, huge amount of the unnecessary redundant procedural compliance were held previously, which has been wiped out. At present, single registration, PAN India, single license and single return have been introduced. Outdated 29 labor enactments which were redundant have been removed and replaced with
4 labor codes under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji for the safety, security, welfare and social security of laborers are concerned are the utmost priority in these codes. Apart from 4 नए लेबर कोड्स के नफाज पर बायबाजू की जमातों और मजदूर यूनियनों ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। CPIM के रहनुमा और पोलिट ब्यूरो के रुकन BV राघुलू ने इल्जाम आयद किया कि इन लेबर कोड्स का मकसद इस्लाहात नहीं बल्कि कारपोरेट मफादात को फायदा पहुंचाने के नाम पर मजदूरों के हुकूक को सल्ब करना है। Finally, the central government has notified the 4 labor codes to implement throughout India immediately. The 4 labor codes, if they have come into implementation, the working class throughout the country will lose all the existing rights, and in the name of ease of doing business, they want to curtail the rights of the unions, they want to reduce the wages, and they want to curtail many of the social security measures that were implemented because of the struggles of the working class in the past. And now the 8-hour working day will be tossed away, and 12-14 hours working day will become the norm. Because of these things, the working class and their unions, central trade unions, gave a call for 26th of this month to oppose these labor codes. In Andhra Pradesh also, the present government of Chandrababu Naidu, BJP and Pawan Kalyan. The government of India, that is Modi government, introduced 4 labor codes against the working class. The working class agitating from so many years, they are agitating and they get some benefits from the governments. Now this government, because the Modi government abolished the entire all acts and this thing, and they want to introduce all. आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्ती में श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद हुई, जिनमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। प्रशांति निलाम में मुनक्किदा इन तकारीब में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर नारा लोकेश भी मौजूद रहे। सदर मुर्मू ने सत्य साई बाबा की महासमाधि के दर्शन को अपनी खुशकिस्मती करार दिया। सदर मुर्मू ने कहा कि सत्य साई बाबा आलमगीर मोहब्बत की अलामत थे। उनकी तालीमात ने लाखों लोगों की खिदमत इंसानियत के रास्ते पर गामजन की। वज़ीर आला चंद्रबाबू ने खिताब में कहा कि सत्य साई बाबा के पैगाम ने कई लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाई। These free services are all offered without discrimination of caste, creed, religion or nationality. Now, very good organization, 140 countries, and also branches more than 2,000. Number-wise, only registered 7,50,000 volunteers. No organization is having this type of strength. Today, we are launching Women Healthcare Program. This initiative focuses on delivering health care, both preventive and curative tribal women. This includes providing multi-speciality medical care through telemedicine, medical screening for anemia, breast and cervical cancer, and making clean drinking water available. मैं श्री सत्य साई बाबा जी की पूर्ण स्मृति को सादर नमन करती हूँ। सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से युक्त प्रशांति निलयों में आकर और उनके जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेकर मुझे स्वात्विक अनुभव हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दो साल पहले 2023 में इस सभागृह में और
श्री सत्य साई बाबा के समाधि पीठ में आने का मुझे मौका मिला था। मैं और एक बार आने का जो मुझे अवसर दिया गया है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मणिपुर में एक प्रोग्राम में कहा कि यूनान, मिस्र और रोम जैसी कदीम तहजीबें मिट गईं, लेकिन भारत एक अमर तहजीब है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू समाज का ऐसा मजबूत ढांचा है कि दुनिया हिंदुओं के बगैर कायम नहीं रह सकती। इस बयान पर सियासी रद्दमल भी सामने आया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर वी करुणाधम ने भागवत के दावे को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि ऐसे बयानात समाजी अहम आहंगी के खिलाफ है। का विचार तो सबको करना पड़ता है, लेकिन आप देखो परिस्थिति आती है और जाती है। देखो दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थिति आई गई, कुछ देश उसमें समाप्त हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हमने देखे और हम अभी भी है और रहेंगे। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने मेट्रो रेल मंसूबे को मुस्तरद करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा और उम्मीद जाहिर की कि इस मामले में गैर जानिबदारी और मुनसिफाना रवैया अपना जाएगा। उन्होंने अपनी टीम के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने की तजवीज पेश की। देखिए एक रिपोर्ट। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने वज़ीर आज़म मोदी को एक खत लिखकर कोयम्बतूर और मदुरई में मेट्रो रेल मंसूबों की तजावीज को मुस्तरद किए जाने पर रियासत की जानिब से अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी को अपनी पिछली मुलाकातों में दिए गए मेमोरेंडम की याद दिलाते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मेट्रो रेल मंसूबों को मुस्तरद किया जाना हमारे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को है। वज़ीर आला एम.के. स्टालिन के मुताबिक मेट्रो मंसूबों को मुस्तरद करने की वजह दुरुस्त नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोयम्बतूर की आबादी 2011 में ही 20 लाख से तजावुज कर चुकी थी और ये भी दावा किया कि उस वक्त से मदुरई की आबादी में भी इजाफा ही हुआ होगा। उन्होंने कहा कि अगर इंदौर, पटना और आगरा जैसे शहरों के लिए 2 मिलियन आबादी का मेयार नाफिज किया जाता है तो वहाँ भी ये मंसूबे मुमकिन नहीं हो पाते। अपने खत में वज़ीर आला स्टालिन ने लिखा कि इससे तमिलनाडु के शहरों के साथ इम्तियाज बढ़ते जाने का तासुर पैदा हुआ है और उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुनसिफाना कार्रवाई करने की अपील की है। वज़ीर आला ने यह भी यकीन दहानी कराई कि मुजव्वज़ा मंसूबों के लिए जमीन की दस्तयाबी कोई रुकावट नहीं बनेगी और उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से दरखास्त की कि वज़ाती तौर पर मुदाखलत करते हुए वज़ारत बराए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को इस फैसले पर दोबारा गौर करने की हिदायत दें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन डकैती केस में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाइयां करते हुए 50 घंटों के अंदर 5.7 करोड़ रुपए बरामद कर लिए और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 19 नवंबर को वारदात पेश आई थी। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त कांस्टेबल अनापा नायक, कैश वैन फ्लैग इंचार्ज गोपी और कैश ट्रांसपोर्ट कमीशन के कंपनी के साबिक मुलाजिम जावेर के तौर पर की गई है। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में अब तक 30 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से पूछगछ की है। ಒಂದು ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ಚಿತ್ತೂರು ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದೇ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರದ್ದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗवर्नमेंट ಆಫ್ इंडिया ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. सो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा कि हम जो तालीम हासिल करते हैं वो समाज के मसाइल का हल पेश करने वाली होनी चाहिए, वरना सिर्फ ख्वानदा बनने का कोई फायदा नहीं। तालीम में मंतकी फिक्र और साइंसी मिजाज होना जरूरी है। वज़ीर आला मशरूक के BMCM हॉस्टल्स के साबिक तलबा की तंजीम की जानिब से मुनक्किदा पहली सालाना तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। ಇವತ್ತು BCM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ
ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದವರು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಬರೀ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले से खबर है। यहां 69वीं आंध्र प्रदेश इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल गेम्स का आगाज हुआ। रियासती सतह के अंडर 19 लड़के और लड़कियों के हॉकी चैंपियनशिप मुकाबलों का इफ्तिताह रियासती वज़ीर दाखिला वनगापुड़ी अनीता ने किया है। रियासत के तमाम अजला से स्टूडेंट्स ने इस इवेंट में शिरकत की और ये मुकाबले 3 रोज तक जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला अनीता ने हॉकी लेजेंड ध्यानचंद के पोर्ट्रेट पर गुलपोशी करके खराज पेश किया। ఇంతకు ముందు స్కూల్స్ లో ఎన్సీసీ అనేది, ఎన్ఎస్ఎస్ అని, స్కూల్ ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉండి ఒక హాకీ అని, క్రికెట్ అని, బాస్కెట్బాల్ అని, కబడ్డీ అని, ఖోఖో అని రకరకాలైన ఆటలు ఆడటమే కాకుండా కనీసం వాళ్ళకి సాయంత్రం అయ్యేసరికి 3 to 5 కంపల్సరీగా స్పోర్ట్స్ క్లాసెస్ ఉండేవి. కానీ ఈ రోజుల్లోని పోటీ ప్రపంచంలో మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మా అబ్బాయికి ఐఐటి సీట్ వస్తుందా, లేకపోతే మా అబ్బాయి పడతాడా లేదా, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైపోయి పిల్లల మీద విపరీతమైన ప్రెషర్ చేసి సూసైడ్ టెండెన్సీలు కూడా చాలా ఎక్కువైపోయే పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో కనిపిస్తా ఉంది. గారు మానసిక ఉల్లాసానికి కూడా ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తాయని చెప్పి చాలా పుస్తకాల్లో చదివినా బయట కూడా చూపించే పరిస్థితి. ఈ రోజు మనందరం చూసాం, ఒక్కసారిగా ప్రపంచం అంతా కూడా ఉమెన్ క్రికెట్ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూడటం, అదేవిధంగా భారతదేశం వైపు చూడటం మనందరం కూడా చూసాం. సాధారణంగా ఉమెన్ క్రికెట్ అంటే చాలా మంది చూసేవారు కాదు. అలాంటిది మొన్న ఉమెన్ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ కొట్టేసరికి మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశం వైపు చూడటమే కాదు, అందులో ఆడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజు గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ల కింద స్టేట్ లెవెల్లోని ఉద్యోగాలు సాధించడం కూడా మనందరం కూడా చూసాం. ఈ రోజు నక్కపల్లికున్న ప్రత్యేకత, నక్కపల్లిలోని ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఈ రోజుకి సుమారుగా చూసుకుంటే దగ్గర 40-50 మంది నేషనల్స్ ఆడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మొన్న రీసెంట్ గా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వచ్చి చాలా మంది టీచర్ పోస్టులు వచ్చినాయి. నా నియోజకవర్గంలో ఒక అమ్మాయి టీచర్ పోస్ట్ వచ్చింది. నేను దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ సబ్జెక్ట్ అమ్మా అన్నాను. మేడం నేను పీఈటీ కింద సెలెక్ట్ అయ్యానండి అనింది. ఇంతకు ముందు స్కూల్స్ లో ఎన్సీసీ అనేది, ఎన్ఎస్ఎస్ అని, స్కూల్ ప్లే గ్రౌండ్। आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों पर समुद्री तूफान का खतरा मंडरा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रियासत में हल्की से दरमियानी बारिशों का इम्कान है। आज चित्तूर, नेल्लोर, कड़पा, अनामया, तिरुपति और प्रकाशम अजला में बारिशें बरसने की पेशगोई की गई है। कड़पा में कम दबाव के असरात पहले ही देखे जा रहे हैं, जहां गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है। कोऑपरेटिव कॉलोनी में एक बड़ा दरख्त अचानक गिर पड़ा, जबकि ट्रांसफार्मर पर दरख्त गिरने से बरक़ी तार टूट गए। मुतल्लिक़ा अमला फौरी तौर पर सप्लाई बहाल करने में मसरूफ नजर आया। विशाखापट्टनम में साहिल पर पैरामोटरिंग एयर सफारी सर्विस शुरू की गई है, जिसके बाद यहां कई लोग फजा में उड़ने का तजुर्बा हासिल करने आ रहे हैं। पैरामोटरिंग राइड का लुत्फ उठाने वालों के बारे में देखिए ये रिपोर्ट। अगली बार जब आप आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम जाएं तो वहां आप एक नए एडवेंचर से भरे तजुर्बे से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। जी हां, वैजाग के साहिल पर पैरामोटरिंग का मजा भी लिया जा सकेगा। रियासती हुकूमत की जानिब से ऋषिकुंडा बीच पर इस एडवेंचर एक्टिविटी का आगाज हो चुका है। इससे शहर के मशहूर साहिली किनारे का मुनफरिद फिजाई मंजर देखा जा सकेगा।
रियासती हुकूमत सयाहती ढांचे को विशाखापट्टनम में मजबूत बनाना चाहती थी। ये पहल इसी मकसद से शुरू की गई है और इससे आने वाले सयाहों के तजुर्बात में इजाफा होगा। एडवेंचर के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में बीच पर पहुंच रहे हैं ताकि इन हवा में उड़ने का तजुर्बा कर सकें और फिजा से साहिली पट्टी के दिलकश और वसी मनाजिर देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मैंने अब बहुत बड़ा उड़ान के बहुत मजा आया है, इतना मजा कि मैंने पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस लिया है। मैं हवा में उड़ के देखा है, आज तक जमीन में तो बहुत चला, पानी में, समुद्र में, सब में चले गए, लेकिन ऊपर आसमान का मजा जो था बहुत ही मजेदार था। मैं तो वो तो आप यहाँ आर के बीच में आइए और यहाँ पर से एक बार ऐसे उड़ के जो भी फ्लाइंग जेट है उसमें जाके देख, इतना मजा आया, कुछ हो जाएगा, मुझे तो बहुत मजा आया है। मुंतज़मीन का कहना है कि सयाहों की जानिब से मिल रहा रिस्पांस इंतहाई मुस्बित है और बहुत से लोग साहिल को आसमान से देखने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऋषिकोंडा विशाखापट्टनम, basically we are connecting here paramotoring air safari and Rishikonda beach. So right now at Rishikonda we are expecting very good response with the people who are coming to explore the Andhra Pradesh. I will ensure with our team will follow all safety measures. This is very good experience. यहाँ वैजाक बीच पर ये नया एडवेंचर स्पॉट तेजी से सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहा है, जिसके बाद हुक्काम को उम्मीद है कि ऋषिकुंडा बीच आंध्र प्रदेश का नुमाया एडवेंचर स्पॉट का मरकज बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज। और अब आखिर में हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश में मखलूत हुकूमत ने लेबर कोड्स का किया खैर मकदम। अपोजिशन ने मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक चलाने का किया ऐलान। पुट्टापर्थी सत्य साई बाबा शताब्दी तकारीब, सदर मुर्मू और वज़ीर आला नायडू की शिरकत। खिदमत इंसानियत में सत्य साई बाबा के किरदार को सराहा। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत। मेट्रो रेल मंसूबे को मुस्तरद करने के बाद नजरसानी की एमके स्टालिन ने की दरख्वास्त। बेंगलुरु से एटीएम वैन की चोरी का केस हल। वारदात के 2 दिन बाद 5 करोड़ 70 लाख रुपए बाजियाब कर लिए गए। 3 मुलजमान गिरफ्तार। विशाखापट्टनम के साहिल पर पैरामोटरिंग का लोग ले रहे हैं लुत्फ। रियासती हुकूमत की काविशों से एडवेंचर स्पोर्ट्स का स्पॉट बनता जा रहा है ऋषिकोंडा बीच। दक्षिण भारत में फिलहाल इतना ही। आदाब।